Good morning, children. Children, today I shall be continue my topic water. Children, in previous video I explained that what is water. Water is a colorless. It means it hasn't any color of water. Okay, and we found the water on the earth in three different forms. First one is a gas form, second one is a solid, and third one is a liquid form. Okay, so gas form, it means when you keep the water inside the vessel and keep on the gas stove, after some time you can see that the water comes from the vessel. This process we call the gas. Okay, this process we call the gas process. And solid, it means when you keep the glass of water in a fridge, and after some times you can see that the water is a fridges. It is a form, we call them a solid form. And liquid form, it means which water you have to drink in a liquid form. You have to drink water in a liquid form. Okay. Now today I will explain that sources of water. What is the sources? Sources, it means how do we get water? Okay. There are two sources of water, surface water and groundwater. Now today, firstly, I would like to explain that groundwater. What is a groundwater? Ground, it means जमीन. ठीक है, जो पानी क्या होता है जमीन के अंदर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? We call them ground water. Ground water is a water that is found underground within rocks. Okay, ground water क्या होता है? जमीन के अंदर पाया जाता है. When rain falls to the ground, some of it flows along the land surface to streams, rivers or lakes. Some moisturizes the ground vegetation. Some evaporates and returns to the atmosphere. Okay, अब ग्राउंड वाटर क्या होता है बच्चों? जो जमीन के अंदर पाया जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल दैट ये क्या है? क्लाउड है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जब बारिश होती है तो बारिश का पानी कहाँ जाता है? ग्राउंड में जाता है. ठीक है, अब जो ग्राउंड में है ये सॉइल है, ये सॉइल क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, ये सॉइल क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करती है. अब क्या होता है? जो ये वाटर यहाँ पर क्या होता है? ये सॉइल है, सॉइल के बीच में क्या होता है? गैप भी होता है. ठीक है, तो इन गैप्स में क्या होता है? वाटर फिल होता है. ठीक है, इन गैप्स में क्या होता है? वाटर फिल होता है. तो ये क्या होता है? इसको जब हम ग्राउंड वाटर, हमें ग्राउंड वाटर चाहिए होता है, जब नीड होती है हमें ग्राउंड वाटर, देन हाउ डू वी गेट? We get groundwater from the help of the well, tube well, okay, hand pump. This is the sources of a groundwater. Some evaporates and returns to the atmosphere. Part of the water also seep into the ground, flows through the unsaturated zone and reaches the water table, which is an imaginary surface from where the ground beneath is saturated. Okay, have a look this picture. This is a water and it is a land, and the water seeps goes deep into the soil. Okay, next is a well water. Well, it means कुआं. ठीक है, well water as a sources of water can be described by their depth. ठीक है, वेल वाटर क्या होता है? एक कुआं होता है. कुआं आपने देखा होगा, कुआं किस टाइप का होता है? ये आपका क्या होता है?
ऐसे कुआं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होती है, रस्सी लगी होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पानी निकालते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होता है, कुआं होता है। इस टाइप का आपका क्या होता है, कुआं होता है। और यहाँ पर क्या होती है, एक रस्सी होती है, रस्सी में बाल्टी होती है और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, पानी को निकालते हैं। और बाय द वे they are constructed, most especially they use different types of pumps at the surface to raise the water। और जब हम पानी निकालते हैं, ठीक है, तो हम बहुत से क्या है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्या है, पंप्स भी यूज करते हैं। द पंप्स इज यूजुअली यूज टू रिट्रीव वाटर एंड इट गो थ्रू एन एक्सटेंसिव फिल्टरेशन और डिकमेंटेशंस, ठीक है, प्रोसेस इधर नेचुरली और केमिकली। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ वेल वाटर, ठीक है। जो वेल वाटर होता है वो हम क्या करते हैं, किसी पंप के थ्रू क्या करते हैं, हम उसको पता लगाते हैं। द पंप इज यूजुअली यूज टू रिट्रीव वाटर। पंप के थ्रू हम पहले हम पंप के थ्रू क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं कि कहाँ पर क्या है, पानी है, ठीक है। और फिर उसको क्या है, एन एक्सटेंसिव फिल्ट्रेशन और डिकमेंटेशन प्रोसेस। उसके बाद उस जो गंदा पानी होता है उसको क्या होता है, फिल्टरेशन होता है, इट मीन्स फिल्टर होता है। इधर नेचुरली और केमिकली देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ वेल वाटर। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि टू टाइप्स के क्या होते हैं, वेल वाटर होते हैं। सैलो वेल्स क्या होता है बच्चों, ये थोड़ा सा उथला पुथला होता है। इट मीन्स इसमें हम एक वेल इसमें हम लेते हैं, एक एग्जांपल इसका वेल हो गया, ठीक है। और एक होता है, आपने नहर एक ऐसा इस टाइप का देखा होगा, ये पाइप होता है, ठीक है, ये पाइप होता है और इस पाइप में क्या आता है, पानी आता है। तो ये भी क्या होता है, सैलो वेल्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जनरली आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, खेतों को क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, ठीक है। सैलो वेल्स एंड बोर होल्स यूजुअली हैव अ डेप्थ ऑफ लेस देन 30 मीटर। इनकी गहराई ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है, 30 मीटर होती। ऑल्दो दे कैन बी एज मच एज 60 मीटर डीप। और या तो फिर क्या हो सकती है, 60 मीटर डीप हो सकती है। स्पेशली इन अ वेरी ड्राई एरियाज ऑफ इथियोपिया वेयर द वाटर टेबल इज लो, ठीक है। वेल कैन बी excavated by hand if the soil is not too hard, ठीक है। वेल कैन बी एक्सकवेटेड, इट मीन्स जो हम पानी, कुएं का पानी हम करते हैं, तो एक्सकवेटेड का मीनिंग है कि हम उसको कैसे निकालते हैं, खुदाई करके निकालते हैं। जो हम कुएं का पानी निकालते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, खुदाई करके निकालते हैं, ठीक है। बाय हैंड इफ द सॉइल इज नॉट टू हार्ड और द वाटर टेबल इज हाई। हैंड डग वेल्स हैव अ relatively large diameter because they to be wide enough for a person to be able to stand inside and dig, ठीक है। अब जो क्या होता है, is too hard or the water table is high. Hand dug wells have relatively, जो ये होता है, हम जो खुदाई करते हैं, ये soil is not too hard, इसकी जो soil होती है वो बहुत hard नहीं होती है, और the water table is high, ठीक है। हैंड डग इट मीन्स जो हम हाथ से कुएं को खोदते हैं, ठीक है। हैव रिलेटिवली लार्ज डायमीटर, इसका जो एरिया होता है, जो व्यास होता है, इट मीन्स जैसे हमने एक कुआं क्या है, खोद दिया। अब जो इसका व्यास है, इसका व्यास क्या है, बड़ा है। डायमीटर इट मीन्स डायमीटर, इसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर, ठीक है। हिंदी में हम इसको कहते हैं व्यास, ठीक है। अब जो इसका डायमीटर होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि जब इसमें खुदाई आदमियों के द्वारा की जा रही है तो आदमी इस तरीके से इसमें खुदाई करेगा कि उसको वहां पर स्टैंड होने के लिए एक स्पेस मिले, ठीक है।
तो इसलिए जो खुदाई करते हैं तो वो कैसे करते हैं कि वहां पर क्या है वो खड़े हो सके, स्टैंड इनसाइड एंड डिग। डीप वेल्स, these are wells that have been sunk with drilling. Machines designed for a constructive water extractions, boreholes. These machines are able to penetrate through harder material that cannot be tackled by hand. Digging and can therefore pass through at least one impermeable layer of rock to productive aquifer underneath. ठीक है, अब जो डीप वेल होता है, डीप वेल क्या होता है, डीप वेल क्या होता है बच्चों, ये कुआं क्या होता है, ये इस टाइप का, ये ऐसे यहाँ पर क्या होता है बना होता है, ठीक है, और ये यहाँ पर हैंड पंप मारने के लिए होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, डीप वेल मतलब इसकी क्या होती है, खुदाई होती है, ठीक है। इसकी क्या होती है, ये वेल तो हम, सैलो वेल तो हम क्या है खुद से भी, आदमी क्या है खुद से भी खोद सकता है, लेकिन जो डीप वेल होता है इसकी गहराई बहुत होती है और ये ड्रिलिंग क्या है, ड्रिलिंग मशीन के द्वारा डिजाइन किया जाता है। इसका जो कंस्ट्रक्टिव होता है ये कंस्ट्रक्टिव होता है थ्रू बाय द ड्रिलिंग मशीन्स। ओके, दीज मशीन्स आर एबल टू पेंट्रेट थ्रू हार्डर मटीरियल, ठीक है। तो इस मशीन के द्वारा हम क्या है, इसको पहले पानी को हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं कि कहाँ पर क्या है पानी है, तो वहां पर उस मशीन के द्वारा क्या है इसको खोदा जाता है, ठीक है। अम्पेरिएबल जो होता है, अम्पेरिएबल लेयर मतलब इट मीन्स जो इसकी खुदाई होती है, अम्पेरिएबल लेयर होता है जहां तक क्या है आदमी नहीं पहुंच सकता है, वहां तक ये मशीन, ड्रिलिंग मशीन के द्वारा हम क्या है इस तक पहुंचते हैं और हम वहां पर क्या है हैंड पंप क्या है स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम डीप वेल। नेक्स्ट वन इज रेन वाटर। Children, do you know that if I ask you question, what is the main sources of water? Then the answer is that rain is the main sources of water. I explained the sources of water: well, shallow, and deep well. But if the rain hasn't, then how do we get the well, deep well water? Because the rain is that's why we call the rain is the main sources of water. When heavy rain falling down and fill the well, river, streams, etc. Okay, that's why we call the rain is the main sources of water. Rainwater is the sources of water that comes from above the clouds. This water is very pure. रेन वाटर कहाँ से आता है बच्चों, रेन वाटर आता है क्लाउड से, ठीक है। अब ये रेन वाटर क्लाउड से तो आता है बट इसकी भी क्या है एक प्रोसेस है, ठीक है। अब क्या प्रोसेस है, रेन वाटर जब बारिश होती है, ठीक है, ये रेन वाटर जब ये बारिश हो रही है, नीचे क्या है नदी है, ठीक है, नीचे क्या है नदी है, रिवर है। अब ये बारिश क्या है यहाँ नदी में पड़ रही है। अब जब नदी में बारिश का पानी आ रहा है तो नदी का पानी आप देखते होंगे कि क्या होता है सडनली क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब रेन वाटर आता कैसे, ये है सन। जब सन रेज रेन में रिवर में पड़ती है तो वाटर क्या होता है, मैंने आपको बताया था 3 फॉर्म में बताया था, गैस फॉर्म, ठीक है। तो जब सन रेज वाटर रिवर में पड़ रही है तो इसमें क्या निकल रहा है, वेपर। क्या निकल रहा है, वेपर, ठीक है। तो जब वेपर निकल रहा है यहां से, जब सूरज की किरणें नदी में पड़ रही हैं, नदी में पड़ने के बाद पानी गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद यहां से क्या निकल रहा है, वेपर निकल रहा है। अब ये वेपर वापस कहाँ जाता है, क्लाउड में। क्लाउड में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। एंड आफ्टर दैट यू कैन सी द रेन स्टार्टेड। ओके,
Rain water is very pure water until it encounters something on it way down. However, if it is stored properly, it may relinquish clean drinking water. It region where rainfall is abundant and frequent, rainwater can be a good sources of water supply for individual. ठीक है, in regions where rainfall is abundant मतलब जहां बारिश क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है. abundant मतलब होता है बहुत ज्यादा. ठीक है, जब क्या होती है, बारिश क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, वहां पर रेन वाटर कैन बी अ गुड सोर्सेस ऑफ वाटर. वहां पर क्या होता है, रेन वाटर क्या होता है, हमारे लिए एक मेन सोर्सेस ऑफ वाटर बन जाता है. ठीक है, क्या होता है, कहाँ अगर हमें कहीं पर पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे हमें कमी लग रही है, तो हम अगर बारिश हो जाती है तो बारिश से क्या हो जाता है, हम रेन जो हमारा सोर्सेस ऑफ वाटर है हम उसको पा सकते हैं. सप्लाई फॉर इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड सम कम्युनिटीज. The storage of rainwater is particularly important in areas with a long dry season. ठीक है, अब ये जो रेन वाटर होता है ये मोस्टली कहाँ पर, प्रोबेबली कहाँ पर हेल्पफुल होता है, जहां पर क्या होता है, ड्राई प्लेस होता है. ठीक है, बारिश नहीं हो रही है, जहां पर क्या है, पानी की कमी है, तो वहां पर अगर बारिश हो जाती है तो ये रेन वाटर वहां पर क्या करता है, एक मेन सोर्सेस ऑफ वाटर का क्या करता है, काम करता है. The term rainwater harvesting is sometimes used. It simply means collecting or harvesting rainwater as it runs off from hard surface and storing it in a tank or cistern. ठीक है, अब जब बारिश होती है, बारिश एक बच्चों क्या होता है, खेतों में अगर पानी नहीं है, ठीक है, पानी नहीं है, लेकिन अगर बारिश होती है तो वो भी क्या होता है, एक सोर्स बन जाता है. ठीक है, वहां पर क्या, खेतों में क्या हो जाता है, पानी उसको एक बारिश के द्वारा मिल जाता है. और हम लोगों का क्या होता है, अगर बारिश नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, बारिश का पानी क्या करते हैं, अपने टैंक में भर देते हैं. ठीक है, रेन वाटर हैज सेवरल एडवांटेज. इट इज फ्री, रिलेटिवली क्लीन एंड यूजुअल रिलायबल. रेन वाटर क्या होता है, बहुत क्या होता है, सेवरल एडवांटेज है हमारे लिए. क्या है, एक ये क्या है, सेवरल एडवांटेज है. इट इज फ्री, ये फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं. ठीक है, इवन इफ इट रेन्स ओनली वंस और ट्वाइस अ ईयर, अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैन बी इजीली कंस्ट्रक्टेड एंड maintain at low cost, although mainly found in rural areas. ठीक है, हम लोग क्या है, रेन वाटर अगर बारिश होती है, हम बारिश को क्या स्टोर कर सकते हैं. स्टोर करने के बाद हम क्या है, अगर पानी की कमी हो रही है तो हम उस पानी को, स्टोरेज पानी का हम लोग क्या करते हैं, बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने खेतों को सींचने में उसका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. Next topic is surface water. Surface water is easily the most abundant supply of natural water. Surface water क्या होता है बच्चों, surface it means ऊपरी सतह. ठीक है, ये क्या है, आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो क्या है, ऊपरी सतह, इसे हम कहते हैं सरफेस. ठीक है, सरफेस मतलब जो हमें ऊपर मिल रहा है. अब ऊपर हमें जो ऊपर का पानी है वो सोर्सेस क्या है, एक तो रिवर है. ठीक है, रिवर आपका क्या है, सरफेस वाटर है. ठीक है, एक आपका है लेक. लेक भी क्या है, आपका सरफेस वाटर है, जो हमें क्या मिल रहा है, पृथ्वी की ऊपरी सतह में मिल रहा है. सरफेस वाटर इज इजीली द मोस्ट अबंडेंट सप्लाई ऑफ नेचुरल वाटर. द डाउन साइड इज दैट most of the surface water on the planet is salt water, so it is not ideal for drinking for the most living species. ठीक है, सरफेस वाटर क्या बताया मैंने आपको, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर होता है, जैसे आपका नदी का पानी हो गया, आपका समुद्र का पानी, आपका झील का पानी होगा. लेकिन दिस वाटर इट्स नॉट अ गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज दिस वाटर मिक्सेस द लॉट्स ऑफ डस्ट एंड धूल मिट्टी, बहुत सा ये पानी क्या होता है, बहुत ही
इम्प्योर होता है, ठीक है। सरफेस वाटर डज प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लीव्स इन एडिशंस टू बीइंग अ सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। लेकिन जो हमें सरफेस वाटर मिलता है वो हमें कैसे मिलता है, फिर फिल्ट्रेशन होकर के हमारे घर में हमें घर में मिलता है बाय द हेल्प ऑफ द टैप, ठीक है। हमें नल के द्वारा क्या है वो पानी मिलता है। सरफेस वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब जो सरफेस वाटर होता है उसका यूज हम क्या करते हैं, बिजली के उत्पन्न में भी क्या होता है, इसका हम पानी का यूज करते हैं। Sources that is also renewable. So surface water is supplied by precipitation springs and ice melting from higher elevations and glaciers. हायर एलिवेशंस इट मीन्स जो ऊंचाई वाले स्थान होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, वहां से क्या ये पानी क्या है मेल्ट होकर के क्या होता है, ये रिवर में मिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या है ये पानी हमें मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज लेक एंड रिवर वाटर। लेक एंड रिवर प्रोवाइड मच वाटर टू वाइल्ड एनिमल्स। जो नदी का पानी होता है, झील का पानी होता है, वो किसको प्रोवाइड होता है, वो किसको प्रोवाइड करता है, एनिमल्स को, ठीक है। आपने देखा होगा कि नदी किनारे ज्यादातर क्या होता है, एनिमल्स उस पानी को पीते हैं। इफ क्लीन एंड फिल्टर्ड प्रोबेबली इट कुड बिकम क्लीन इनफ टू ड्रिंक फॉर ह्यूमंस। अब जब ये क्लीन हो करके आता है, जब ये क्लीन हो जाता है वाटर, बहुत से टैंक में क्या होता है ये क्लीन प्योरिफाइड होता है, एंड आफ्टर दैट वी गेट द वाटर एंड वी ड्रिंक दिस वाटर, ठीक है। मोस्ट कंट्रीज विद एक्सेस टू लेक्स एंड रिवर्स यूज देयर वाटर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। बहुत से जगह सिटी में क्या होता है, ये वाटर क्या है हमें मिलता है बाय द फिल्ट्रेशन, फिल्टर होकर के क्या है हमें ये पानी हमें मिलता है। दिस सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई इज यूजुअली रेगुलरली replenished by various weather events, ठीक है। हम इसके बाद क्या है, हम इसको क्या है सप्लाई करते हैं और हम इसको रेगुलरली रिप्लेनिश्ड मीन्स होता है हम इसको फिर बाद में मंगाते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया हमारे घर में जब सप्लाई होकर के आता है तो हमें घर में कैसे ये मिलता है, हमें टैप के द्वारा ये पानी हमें मिलता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज केयरफुल यूज ऑफ वाटर सोर्सेज, ठीक है। हमें बच्चों क्या है वाटर का यूज केयरफुल होकर के करना चाहिए। ऑल्दो ऑल द नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर आर कॉन्स्टेंटली replenished through weather cycles, we still need to be constructive on how we use water, ठीक है। हमें पानी क्या है बच्चों, हमें precipitation process the precipitations we get the water. Precipitation it means I explained then river water when warm, and after that the vapor comes from the river and mixes the cloud, and sometimes the raining started, okay. फ्रेश वाटर इज लाइक प्रीशियस गिफ्ट, ठीक है। पानी क्या होता है बहुत प्रीशियस होता है, तो हमें इसे कंजर्व करना चाहिए, हमें वेस्टेज नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज इट स्पेंगली एंड डू एवरीथिंग इन आवर पावर टू शेयर एंड प्रोटेक्ट इट फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें क्या है अभी हम यूज कर रहे हैं, पानी का यूज कर रहे हैं और हम वेस्टेज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अभी पानी को सेव नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन तक ये पानी कैसे मिलेगा, हाउ डू दे गेट, नेक्स्ट जनरेशन तक तो ये पानी बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी हम पानी को सेव नहीं कर रहे हैं। हमें पानी को सेव करना बहुत जरूरी, कंजर्व करो पानी को, क्या है उसको सेव करो। जो आप गार्डनिंग करते हो, प्लांटिंग करते हो, तो हम रेन वाटर को क्या है स्टोर करके हम उसका क्या है यूज कर सकते हैं। ट्राई टू नॉट वेस्ट वाटर इन योर होम बाय यूजिंग फ्लो रेगुलेशन एंड
कलेक्ट रेन वाटर फॉर यूज इन योर गार्डन। ठीक है, हम लोग क्या है रेन वाटर कलेक्ट करके हम उसको क्या है गार्डन में यूज कर सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज टू कीप द नेचुरल वाटर साइकिल फ्लोइंग इफ वी आर केयरफुल इन हाउ वी यूज द वाटर वी हैव एक्सेस टू टुडे। ठीक है, हमारे पास क्या है बहुत से सेवरल वेज हैं टू सेव द वाटर। हमारे पास बहुत से तरीके हैं पानी को सेव करने का। आप जब ब्रश करते हो आप पानी को रनिंग उसको खुला मत छोड़ो। जब आप नहाते हो बकेट का यूज करो, शावर का यूज मत करो। आप गाड़ी अगर धुलते हो तो पाइप का यूज ना करके उसमें क्या है बकेट का यूज हम कर सकते हैं। इससे क्या होता है पानी को हम क्या कर सकते हैं सेव कर सकते हैं। पानी हमारे लिए बच्चों बहुत ही प्रीशियस है। वी कांट लिव विदाउट वाटर। इवन plants and animal also can't live without water. So understand what is the value of water. Okay, children, this lesson has been finished. I hope this chapter you all are understand how do we save the water and what is the use of water, the sources of water. Now I shall be explain the questions answer. Why water is oceans and seas are unfit for drinking? It means जो समुद्र का पानी और महासागर का पानी होता है वो हमारे लिए पीने के लिए अनफिट क्यों होता है। Water in oceans and seas are salty because many salts are dissolved in it. ठीक है, समुद्र का पानी और महासागर का पानी इसलिए हमारे लिए अनहेल्थी होता है, अनफिट होता है बिकॉज उसमें क्या होता है बहुत सा नमक होता है। ठीक है, व्हाट इज ग्राउंड वाटर? अब ग्राउंड वाटर आपको क्या बताया था बच्चों, जो क्या होता है जमीन के अंदर। ग्राउंड वाटर इज द वाटर लोकेटेड बीनीथ द अर्थ सरफेस। ठीक है, जो पृथ्वी की सतह के अंदर होता है। इन सॉइल एंड इन द फ्रैक्चर्स ऑफ रॉक फॉर्मेशंस। ठीक है, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, इनके सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है? वेल, द सोर्सेस ऑफ वाटर इन वेल इज ग्राउंड वाटर। वेल का सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है? ग्राउंड वाटर। ग्राउंड, द सोर्सेस ऑफ वाटर ऑन ग्राउंड इज रेन। और जो जमीन में पानी मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? बारिश के द्वारा। एटमॉस्फेयर, द सोर्सेस ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर इज इवेपोरेशन। जब एटमॉस्फेयर में पानी हमें कैसे मिलता है? इवेपोरेट मैंने बच्चों आपको बताया जब पानी गर्म होता है तो उसकी जो भाप निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? इवेपोरेट कहते हैं। Next is the earth looks blue from space. Explain why. अर्थ जो है वो ब्लू क्यों होता है? तो क्यों होता है? द मेजर सरफेस एरिया 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। जो पृथ्वी की सतह पृथ्वी है वो क्या है? 71% क्या है? कवर्ड है बाय द वाटर। तो इसलिए क्या होता है जो पृथ्वी है वो हमें कैसे लगती है? ब्लू लगती। वाई इज वाटर इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग बीइंग? अब पानी हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग बीइंग बिकॉज नन ऑफ देम कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। क्योंकि हम लोग क्या है पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग क्वेश्चंस। व्हाट इज वाटर कंजर्वेशन? कंजर्वेशन इट मीन्स आप पानी को कैसे संरक्षित रख सकते हो, कैसे आप उसको बचा सकते हो। प्रॉपर यूटिलाइजेशन, अवॉइडिंग वेस्टेज and maintaining the amount of water in its different sources is called water conservation. ठीक है, आप प्रॉपर उसका यूटिलाइज करो, पानी को वेस्टेज होने से रखो। ठीक है, तो हम इससे क्या है इन चीजों से हम पानी को क्या है कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। वाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर? हमें पानी को बचाने की क्यों जरूरत है? क्यों हम पानी को बचाएं? हम इसको वेस्टेज भी तो कर सकते हैं, लेकिन नो। इफ यू कंटिन्यू टू वेस्ट वाटर and its sources carelessly and do not conserve water, a time will come when there were no water left for our survival.
ठीक है। अगर हम पानी को वेस्टेज करते हैं तो क्या होगा, फ्यूचर में हमारे लिए पानी सरवाइव करने के लिए पानी नहीं होगा, और सबको पता है हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। दैट्स वाई वी कंजर्व द वाटर। हाउ, नेक्स्ट वन इज हाउ इज सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज अफेक्ट द ग्राउंड वाटर लेवल ऑन वाटर स्कैरिसिटी। ठीक है, हम पानी जो फैक्ट्रीज होती है वो कैसे ग्राउंड वाटर को क्या करती है, अफेक्ट करती है। स्कैरिसिटी इट मीन्स कमी, पानी कैसे कमी होती है ग्राउंड वाटर। मोर एंड बिग फैक्ट्रीज आर सेट टू मीट द एवरी ग्रोइंग डिमांड ऑफ पीपल लाइक फूड, क्लॉथिंग एंड अदर थिंग्स। दीज फैक्ट्रीज यूटिलाइज मोर अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, आपने देखा होगा फैक्ट्रीज होती है, बहुत सी फैक्ट्रीज होती है, तो वो क्या करती हैं, वो अंडरग्राउंड जो पानी जमीन के अंदर से है उसको यूटिलाइज करती हैं, विच इज नॉट फिल्टर अगेन एज मच एज इट इज यूज ड्यू टू स्टोरेज ऑफ रेनफॉल। ठीक है, दिस डिक्रीज, जब वो पानी को क्या है निकाल रही है, ठीक है, वो पानी को क्या है उसको मशीन्स के थ्रू क्या है पानी तो निकाल रहे हैं, लेकिन वो पानी जब बारिश ही नहीं होगी तो क्या होगा, पानी कमी तो होगी, पानी जमीन के अंदर कैसे जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन है ग्राउंड वाटर में, दिस डिक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर लेवल विच लीड्स टू वाटर स्कैरिसिटी। जो ग्राउंड वाटर में कमी हो रही है ये एक मेन रीजन है। राइट एनी 3 ways बाय विच यू कैन कंजर्व वाटर। 3 तरीके बताओ जिससे हम पानी के क्या है सेव। 3 ways बाय वी कैन कंजर्व वाटर। टर्न ऑफ द टैप्स व्हेन नॉट इन यूज। आप नल को क्या है बंद कर सकते हो जब उसका यूज नहीं है। डू नॉट वेस्ट वाटर वाइल ब्रशिंग टीथ और बाथिंग। पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए जब आप नहा रहे हो और जब आप ब्रश कर रहे हो। गेट ड्रिपिंग टैप्स एंड लीकिंग पाइप्स रिपेयर्ड एज सून एज पॉसिबल। जो ड्रिपिंग पाइप है, बहता पानी है, जो आपका लीकेज पाइप है, उसको आप क्या है जल्दी से जल्दी उसको क्या है आप उसको रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ आया, वाटर की इम्पोर्टेंस समझ आई कि वाटर हमारे लिए क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस